right? And I'm gonna share my content. So is my display visible to each and everything? Is my display visible to each and every one? Yes, sir. Okay, right. Thank you so much. So what we are going to do, we are going to start with the multi-threading from the beginning. Ma'am might have told you about the multi-threading a bit already, but I want to start with the multi-threading from the beginning. So what is the requirement of the multi-threading, right? Why we need multi-threading, or what is a multi-threading? So multi-threading is an ability of an operating system with or in association with the CPU to run multiple programs or multiple tasks at the same time, right? Okay, please, मैं ये जानना चाहता हूँ that do you want to listen this lecture in English or Hindi? Yes, reply please. Do you want to listen this lecture in English or Hindi? Okay, so why we do need the multi-threading? So multi-threading is actually an ability of an operating system to run multiple processes at the same time, right? But provided that the operating system must have the multiple CPUs on which the operating system is working. I mean to say that there are the two types of computer system. The first is the single-threaded computer system, and I'm sorry, the first is the single-core computer system, and second is the multi-core computer system. What is the core? The core is actually a CPU, right? So at one side we do have only one CPU, and at other side we do have more than one CPU, right? So the multi-threading is only and only possible on multiple CPUs rather than one CPU, right? You cannot run multi-threaded programs, or you cannot run multi-threading on a single CPU, right? So please keep that in mind. It can be an interview question, right? So in order to apply multi-threading, or in order to work with the multi-threading, you must have multiple CPUs installed in your computer, right? Or your operating system must have an ability to switch from one program to another program, or from one process to another process while executing the tasks, right? So this is all about concurrency, right? So, introduction to multi-threading, why we need it. So, for an example, you might have faced the following situations, or there are the various real-life examples of the need of multi-threading. So, for an example, assume that we do have a Google Chrome, or assume that we do have the Mozilla Firefox, and assume that you are downloading some movie, and until and unless you do not finish the download of the movie, you cannot ओपन द फेसबुक, राइट? जब तक आप मूवी डाउनलोड नहीं कर लेते, तब तक आप फेसबुक ओपन नहीं कर पाएंगे. या लेट अस से यू कैनॉट ओपन जीमेल until you close the Facebook. आप जीमेल ओपन नहीं कर पाएंगे तब तक, जब जब तक आप जीमेल को सॉरी आप जब आप जीमेल ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक आप फेसबुक को बंद नहीं कर देते, ठीक है? सो ये प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? दिस इज द सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल, राइट? सो ये पेज यही समझाने की कोशिश कर रहा है, योर ब्राउजर कैनॉट स्किप टू द नेक्स्ट वेब पेज बिकॉज इट इज डाउनलोडिंग अ फाइल, और you cannot enter text into your current document until your word processor completes the task of saving the document to the disk, right? uh, each and every application nowadays supports multi-threading, right? So for an example, let us take an example of the Microsoft Word. So while typing something, we can clearly see that the Microsoft Word can check your spell mistakes. So that spell checking system is actually another thread that is running into the background of the Microsoft Word application, right? So the Microsoft Word is the main or the parent process, whereas the spell checker is actually a child process that is being or that is ran by the Microsoft Word, right? So there is we do have
a process in our operating system. I mean, as far as multi-threading is concerned, right? We do have one process running into our operating system, right? And that process can generate a number of multiple other processes known as child processes, and these child processes can also known as the threads of that particular process, right? Okay, so what is the difference between process and a thread? So a process is actually your program, right? So for an example, you have typed a program in a Java, right? And that program is saved on your disk, right? And now you're going to start that particular program, or your program is about to run, or now your program is running. Now the program is turned into a process. I think you might have studied the operating system. So if you have studied the operating system very carefully, then you might have familiar with these all kind of things, right? So your operating system actually gets the program, or it reads the program from your disk, and it loads the program into the random access memory by making use of the long-term scheduler, and then your CPU execute each process one by one by making use of the short-term scheduler in a ready queue, right? So this is all about your multitasking, or the CPU scheduling and all these kind of things, right? So I think I am assuming that you're familiar with all these kind of things in your in operating system subject. So if you're familiar, then the multi-threading is a very nice topic, or very easy topic to understand in Java, right? Okay, why do we encourage the multitasking? So now what is multitasking? Multitasking is nothing but just an ability of an operating system and a CPU to process more than one process at the same time, right? Multitasking, right? इसकी real life example है. For an example, you're driving your car, and you have to pick a phone call, and while driving a car, you are talking to your friend or family member simultaneously. So आप गाड़ी चलाते चलाते दो काम कर रहे हो, ठीक है? So this is the multi-threading or multitasking, right? Or for an example, you are watching some movie, and at the same time you're eating the popcorns. So this is also multitasking, right? So our brain actually multitasks multiple things at the same time, right? So I am speaking with you, and side by side I am looking at the PPT in front of me. This is also a multitasking. So in the same way, our operating system and the CPUs works with the processes. Our operating system allows our CPUs to process one process, more than one process at the same time, and this is what we call multitasking. Okay, एक और क्वेश्चन आपसे हो सकता है, what is difference between multi-programming and multitasking? Right? So multitasking is all about multi-threading, right? So multi-programming and multitasking में क्या difference है, right? So multi-programming is an ability of an operating system to bring more than one process at the same time from disk to random access memory. I'm repeating, multi-programming is an ability of an operating system to get more than one program or process to random access memory at the same time, whereas multitasking is an operating system is an ability of an operating system to allow single or multiple CPUs to execute more than one tasks at the same time, right? Okay, and एक और टर्म होती है, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग. सो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है, मल्टी प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट योर हार्डवेयर, राइट? मल्टीपल प्रोसेसर्स, हमारे हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं, 16 प्रोसेसर्स हैं, 32 प्रोसेसर्स हैं, राइट? सो उस उनमें से एक प्रोसेसर जो है वो मास्टर प्रोसेसर है, और बाकी प्रोसेसर जो है वो स्लेव प्रोसेसर है. एंड दिस इज अ ड्यूटी ऑफ द मास्टर प्रोसेसर टू असाइन the tasks to the slave processors time by time, and monitoring each and every processor कि किस प्रोसेसर ने कितना काम कर लिया, कितना नहीं किया, कौन सा प्रोसेसर फेल हो चुका है, राइट? दिस इज नोन एज फॉल्ट टॉलरेंस इन मल्टी प्रोसेसिंग. सो मैं इसलिए ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको मल्टीटास्किंग, जिसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, ठीक है,
मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो प्लीज बी इन्फॉर्म्ड फॉर दैट, राइट? So, so the real life example of multi-threading are one man versus 10 men, right? So for an example, there is a one man, or for an example, you have been assigned with an assignment. आपको एक assignment बनानी है 10 pages की, ठीक है? So अगर अगर आप अकेले बंदे हो, if you're a single person, right, and you have to write 10 pages at the same time, right, then obviously अगर आप एक पेज एक मिनट में लिखते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि if you're a single person then you will write 10 pages in 10 minutes. But on the other hand, if you allow multi-threading, तो आप अपने 9 दोस्तों को बुलाकर, ठीक है, उनको ये कह सकते हो कि I have been allocated to write 10 pages, right? So आपने सिर्फ अब एक ही पेज लिखना है और बाकी के 9 पेजेस जो आपने लिखने थे वो अपने 9 दोस्तों में डिवाइड कर दिए। तो अब आपका जो 10 मिनट का काम है वो 1 मिनट में हो चुका है, ठीक है। So this is the magic of multi-threading, right? So this is why we encourage a software developer to develop that particular software or application in such a way that it should support multi-threading, right? आप आगे चल के iOS में एप्लीकेशंस बनाओगे, एंड्रॉयड में एप्लीकेशंस बनाओगे, राइट, या विजुअल सी शार्प में विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे। सो एप्लीकेशन इस तरह से बननी चाहिए कि वो मल्टी थ्रेडेड हो, राइट, वो हैंग ना हो और वो एक टाइम पे मल्टीपल काम करने के काबिल हो, राइट। ओके, मैंने ये सब चीज़ें पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, मल्टीटास्किंग क्या होता है, राइट, और इसमें जो नहीं भी है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, राइट। आई हैव एक्सप्लेन ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑलरेडी, राइट। सो दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कि हम रोज़ अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग की, राइट। आज हम मल्टी थ्रेडिंग की कोडिंग भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मल्टी थ्रेडिंग की कोडिंग में एक थ्रेड काम कैसे करता है, राइट। Okay, so this is all about the multi-threading. The thread is actually a smallest unit of code that can be dispatched by the thread scheduler, right? Okay, so while I'll be writing a code in Java, then I'll show you the code of a thread inside the code of my main program. So ये जो line है यहाँ पे ये यही कह रही है कि आपकी जो मेन प्रोसेस है, आपकी जो पेरेंट प्रोसेस है, जो उसका कोड है, आपका जो थ्रेड है उसी कोड का एक पार्ट होता है, राइट। सो द प्रोसेस इज ऑलवेज considered as a heavyweight process, whereas the thread is always considered as a lightweight process, ठीक है। सो ये हैवी वेट और ये लाइट वेट ये एक्चुअल में है क्या? सो हैवी वेट का मतलब है कि प्रोसेस जो है ये दूसरी प्रोसेस के साथ जब कम्युनिकेट करती है तब भी उसको सीपीयू की अटेंशन चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। जो प्रोसेस होती है उसको चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, राइट। फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहला रिसोर्स itself is a CPU, and another resource is actually a RAM, fine. Another resource can be a storage media, it can be a storage tape, it can be a disk, right, or it can be a memory card, right. And another kind of resource can be a printer, a scanner, right. So वो सभी चीजें एक्चुअली मल्टीपल प्रोसेसेस एट अ टाइम शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो इन सभी चीजों में बहुत टाइम जाया होता है, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो जो हमारा द on the other hand, our multi-threading or a thread is always a lightweight process. Why is it lightweight? It can be an interview question. Why it is a lightweight, right? Because the thread share all the resources allocated by the operating system to the process, right? आपकी प्रोसेस ने पहले ही रिसोर्सेज मांग लिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। सो जो थ्रेड है अब उसको टेंशन नहीं है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी रिसोर्स मांगेगा, ठीक है। उसने जब भी रिसोर्स मांगना है उसने अपनी पेरेंट प्रोसेस से मांगना है, ठीक है। एंड द थ्रेड विल ऑलवेज रिटर्न इट्स रिजल्ट टू इट्स पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, थ्रेड विल ऑलवेज रिटर्न इट्स रिजल्ट टू इट्स पेरेंट प्रोसेस, राइट। ओके, अगर
if your system, your laptop or your desktop system is a single processor system, right, then the multi-threading is not possible. Only one thread, right, only one thread, iska matlab parent process will be executing at a given point of time, right. Your processor cannot I mean, if you do have a single processor, right, then it has to context switch on multiple processes at the same time. So एक एक टाइम पे एक प्रोसेस पे ये काम करेगा और कॉन्टेक्स्ट स्विच करके ये दूसरी प्रोसेस पे चला जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस होते, ठीक है, तो फिर कंकरेंसी हमें दिखाई देती, ठीक है। वेट अ सेकंड, आई थिंक समवन माइट हैव सेंट मी अ मैसेज। ओके, राइट, there is no message but there is a notification. Okay, right. So यहां तक आपको कोई भी क्वेश्चन है? Do you have any query? Hello, do you have any query? I'm repeating, do you have any query? Okay, thank you. Okay, thank you, Karthike. Okay, now, so this is another example of the multi-threading. So the best example of PUBG, right? I also played PUBG more often, right? Unfortunately, this is now a ban in India, but the PUBG or the mini militia or the Call of Duty Modern Warfare or these all kind of games, or every kind of game, right, is actually a multi-threaded game. Whether it is a cricket game, it is PUBG, it is football, it is Call of Duty, it is mini militia, right? So उसमें होता क्या है, you are controlling your own player, right? But the CPU has created a number of threads in your game, and your opponents will be controlled by the multiple threads generated by your game, right? And this is actually a combination of artificial intelligence as well as the multi-threading, right, to compete with your player, right? So यहाँ पे ये जो आप फोटो देख रहे हो, इसमें ये जो ये येलो कार है, ये आप चला रहे हो, right? You are interacting with your parent process, you are giving input to your parent process, right? And on behalf of your parent process is driving this yellow car, whereas on the other hand, your parent process has already generated a lot of threads to drive these white cars or gray cars, ठीक है। So ये cars automatically चल रही हैं। कौन ये cars कौन drive कर रहे हैं? ये cars drive कर रहे हैं जो मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस पेरेंट प्रोसेस ने बना दी हैं। चाइल्ड प्रोसेसेस का मतलब थ्रेड्स, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ये सारे थ्रेड्स काम करते हैं, राइट। ओके, ये वही है वन मैन वर्सेस मल्टीपल मैन जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दे दी है, राइट। So okay, so this is an example of Microsoft Word and multitasking versus multi-threading, right? So ये सभी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, right? So use of multi-threading, राइट, ये आपको मैंने बता ही दिया है, राइट। सिंगल थ्रेडेड सिस्टम, राइट, जहाँ पे एक ही सिस्टम होता है, ठीक है। और आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो। आपके पास 10 काम आए हुए हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही काम कर पा रहे हो, ठीक है। सो जब तक एक काम नहीं कर लेते आप दूसरा काम नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली दिस इज अ वेस्टेज of the valuable time of the CPU, right? So this is why we need the multi-threading. So this is why the modern operating system as well as the modern applications of Android, iOS as well as the Windows are all multi-threaded, right? Okay, so this is the single threaded diagram, right? इसमें जो मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड का मतलब आपकी पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। उसने एक थ्रेड बनाया, ठीक है, फिर दूसरा थ्रेड बनाया, फिर तीसरा थ्रेड बनाया। तो पहला थ्रेड चल रहा है, ठीक है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक दूसरा नहीं चलेगा। तो ये खत्म हुआ तो दूसरा चला, दूसरे के बाद तीसरा चला, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोसेस जो है वो खत्म हुई, ठीक है। तो ये नुकसान है हमारा अगर हम मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई करते हैं तो ये देखिए, राइट, आप जैसे ही आपकी मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है, राइट, तो उसके बाद क्या होता है, ये मल्टीपल थ्रेड्स बना देती है, राइट। तो यहाँ भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसके पास 4 काम है। 4 काम का मतलब इसके पास अपना काम है, मेन थ्रेड के पास अपना काम है, ठीक है। और दूसरा काम इसने थ्रेड 1 को दे दिया, तीसरा थ्रेड 2 को दे दिया, और चौथा जो है वो थ्रेड 3 को दे दिया, फाइन। सो नाउ इट इज एबल टू एग्जीक्यूट 4 distinct tasks at the same time, right? So
कहाँ कहाँ ये एक ही टास्क एक टाइम पे कर रहा था, कहाँ ये अब 4 टास्क एक टाइम पे कर रहा है. सो obviously there will be a lot of difference in a total time of computation, right? Okay, so this is the summary, and this is all about the introduction and the losses or the disadvantages without multi-threading and the advantages with the multi-threading and the real life examples of the multi-threading. So what we are going to do, we are going to do some coding in a multi-threading, right? How to create a thread in a Java. I am assuming that you are already familiar with Java, right? You know the syntax of Java, right? You know that how to use the Eclipse, right? So in order to apply the multi-threading in a Java's program, you do not need to import any kind of special library in Java, right? The Java has a native support of the multi-threading, right? It has a package named lang. So java.lang.thread. That is actually the name of the complete package, right? In which the multi-threading is being supported, right? So the multi-threading is natively supported by Java as compared to C and C++, where the C as well as the C++ does not support multi-threadings natively, right? They need a special library to be included, and this is known as POSIX threads, right? For your kind information, right? अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि जावा क्या जावा नेटिवली सपोर्ट करती है मल्टी थ्रेडिंग को, ठीक है, क्या जावा के पास ऑलरेडी सपोर्ट है मल्टी थ्रेडिंग की? द आंसर इज यस. कौन सा पैकेज है? java.lang. और क्या अगर जावा को सी सी प्लस प्लस के साथ कंपेयर किया जाए तो सी और सी प्लस प्लस क्या इन दोनों के पास नेटिव सपोर्ट है मल्टी थ्रेडिंग की? नो, नहीं है. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें सी और सी प्लस प्लस में मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करवाने के लिए? हमें एक स्पेशल लाइब्रेरी चाहिए होगी मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करवाने के लिए, और उस लाइब्रेरी का नाम होगा सी और सी प्लस प्लस के लिए POSIX लाइब्रेरी. ठीक है, सो बी इन्फॉर्म्ड एंड टेक अ नोट ऑन दिस, राइट? ओके. So as far as the programming of multi-threading is concerned, the implementation of multi-threading can be done in one of the three ways in Java. ठीक है, हमारे पास multi-threading की प्रोग्रामिंग जावा में करने के 3 रास्ते हैं. ठीक है, पहला रास्ता है implementation of a runnable interface. ठीक है, please take a note on this. First option to implement a multi-threading on a Java's program is to implement runnable interface. The second is implementation of anonymous class of a thread, right, inside your main function. राइट, ये जो फंक्शन है इसमें हम थ्रेड की एक एनोनिमस क्लास बना देते हैं. क्लास इनसाइड अ क्लास इज नोन एज एनोनिमस क्लास. ठीक है, क्लास इनसाइड अ क्लास इज नोन एज एनोनिमस क्लास. ठीक है, सो ये दूसरा तरीका है. द थर्ड थिंग, द थर्ड वे टू इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग इन अ जावा इज generating a different classes for the number of threads. For an example, we need 2 threads. ठीक है, तो उसके लिए हम 2 अलग से क्लासेस लिखेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है टेस्ट. सो दिस इज द पेरेंट प्रोसेस. बी इन्फॉर्म्ड एंड प्लीज काइंडली टेक अ नोट. जो आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है, this portion is actually a parent portion or a portion of a parent process or a portion of a parent program. अभी हमने मल्टी थ्रेडिंग की प्रोग्रामिंग शुरू नहीं की है. इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ चाइल्ड प्रोसेस इनसाइड इट. ठीक है, वो अब हम बनाएंगे. ठीक है, सो तीन तरीके मैंने आपको बता दिए. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. पहला तरीका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रनेबल इंटरफेस, सेकंड एनोनिमस क्लास ऑफ थ्रेड, एंड थर्ड इज making different your classes of multiple threads. ठीक है, apart from your main class. so ये टेस्ट हमारी मेन क्लास है. इसके अलावा हम डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए. ओके, सो पहले से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल पब्लिक क्लास. सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले सबसे आसान तरीका हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं. हम तीसरे से स्टार्ट होते हैं, तो वो है मेकिंग डिफरेंट क्लासेस फॉर डिफरेंट थ्रेड्स. राइट, सो फॉर एन एग्जांपल, सो आई एम मेकिंग अ डिफरेंट क्लासेस. सो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं यहाँ पे. राइट, वी डू हैव अ सिनेरियो.
सो हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी ओके, ये प्रॉब्लम, अगर अगर मल्टी थ्रेडिंग ना हो तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज माय प्रॉब्लम, हम क्या काम करने जा रहे हैं। हमारा काम है, वी हैव टू सम टू नंबर्स, हमें दो नंबर्स का सम करना है, उनका रिजल्ट दिखाना है, साथ ही साथ हमें एक नंबर को इंक्रीमेंट करना है, साथ ही साथ हमें एक नंबर को डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हमारे पास तीन टास्क हैं। ठीक है, पहला टास्क क्या है, दो नंबर्स का सम करना। ठीक है, दूसरा टास्क क्या है, एक नंबर को इंक्रीमेंट करना और डिस्प्ले करना। तीसरा टास्क क्या है, एक नंबर को डिक्रीमेंट करना और डिस्प्ले करना। ठीक है, राइट। सो अगर मल्टी थ्रेडिंग ना होती तो क्या होता, अब देखिए मैं मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये तीन काम करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ओके, राइट। सो in order to accept the input from the user, आई थिंक आपको सभी को पता होगा कि हमें स्कैनर क्लास यूज करनी पड़ती है। ठीक है, स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। so so this over here there is a system.in, right? So we have to implement, so we have to import this package scanner. So scanner is actually a part of import java.util, right? util.star, आप star भी लिख सकते हो या फिर स्पेसिफिकली स्कैनर भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। सो अब यहां तक मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट टू इंटीजर नंबर्स फ्रॉम यूजर, ताकि मैं उनका सम कर सकूं और डिस्प्ले कर सकूं। ओके, सो first is int, sorry, int a is equal to scan dot next int, okay, and int b is equal to scan dot next int, right, and int result is equal to a plus b, right, and then system dot out dot print ln, right, and there will be a result, right. So ये मेरा पहला टास्क है, right. So this is the task one. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, task one ends here, right. So now what is another task, हमारा अगला टास्क क्या है। ठीक है, हमारा अगला टास्क है एक नंबर को इंक्रीमेंट करवाना और उसको डिस्प्ले करवाना। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया int inc is equal to 0, राइट। तो ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर का, जिसको मैंने 0 पे इनिशियलाइज करवा दिया। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ अब, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मेरा दूसरा टास्क क्या है, ये inc प्लस प्लस, राइट। सो मैं यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट करवाऊंगा और डिस्प्ले करवा दूंगा। तीसरा टास्क क्या है, तीसरा टास्क है int dec is equal to 0, right. Okay, so the second task ends over here. See, this is very interesting. प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप जब डेवलपर बनोगे या किसी कंपनी में जाओगे, ठीक है, तो आपको ये बहुत काम आने वाली ये चीज, राइट। सो टास्क 2 ends here, and now the task 3. Our task 3 is actually a decrement, to decrement a number and its display, right. So dec minus minus. So हमारा रिजल्ट क्या आएगा अब, दिस इज आवर टास्क 3. So task 3 ends here. So task 1 का result आएगा, for an example, if I entered 2 and 3, then the sum will be 5. So then the increment, it will show the value 0, right, because ये प्लस प्लस बाद में हो रहा है। ठीक है, फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर आएगा माइनस समथिंग, राइट, -1, राइट, और उसके बाद फिर से मैं इनपुट करूंगा, फिर से वो सम करके डिस्प्ले करवा देगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा -2 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन होगा क्या, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, हमें दिक्कत क्या है, अब यहाँ पे सिंटैक्स एरर कोई भी नहीं है, और मैं इसको रन करने वाला हूँ। ठीक है, सो आई एम रनिंग दिस। ओके, राइट। सो हमारा प्रोग्राम चल चुका है। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 पहली इनपुट दी 2। ठीक है, ये देखिए 7 and 7, ठीक है, 0 0 0 0 7 क्या आया, 5 + 2 7, 0 0 क्या है, क्योंकि INC एंड DEC जो है ये 0 पे इनिशियलाइज्ड थे। ठीक है, तो आपको ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में पता होगा कि अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस बाद में लगाएं तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाद में होते हैं, पहले वैल्यू का रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, तो 0 और 0 दिखा दिया। अब मैं अगली बार दोबारा से 2 नंबर एंटर कर रहा हूं ताकि उनका सम हो सके, फिर आप देख पाएंगे कि इंक्रीमेंट हुआ और डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, ओके, सो आई एम एंटरिंग एन 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 आई एम सॉरी, मैं यहां पे ऐसा करता हूं,
इसको while लूप में चलाता हूं ताकि ये बार बार चलता रहे। सॉरी आई फॉरगॉट दिस। इसको एक फॉर एवर लूप में मैं यहाँ पे रन करने वाला हूँ ताकि ये बार बार चलता रहे, बार बार हमसे नंबर मांगता रहे। ये इंट ए और इंट बी जो है ये मैं बाहर इनिशियलाइज करवा देता हूँ। ओके सो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। सो अब प्लीज यहाँ से देखना, ठीक है। मैं ये प्लस प्लस आईएनसी और माइनस माइनस आईएनसी जो है ये पहले कर रहा हूँ ताकि हमें पहले शॉट में ही रिजल्ट दिखाई दे जाए। ओके सो आई एम गोइंग टू रन दिस। Okay, so 5 plus 2, 7. As you can see that 1 and minus 1, right? So हुआ क्या, मुझे चाहिए था कि मैं चाहे इनपुट करूं चाहे ना करूं लेकिन डिक्रीमेंट हमेशा होता रहे, इंक्रीमेंट हमेशा होता रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, दिस इंक्रीमेंट एंड दिस डिक्रीमेंट, ठीक, ये तब तक नहीं होंगे जब तक मैं दो वैल्यूज इनपुट नहीं कर देता। अब देखिए ये दोबारा से वेट कर रहा है, राइट। आई एम गोइंग टू इनपुट अनदर टू नंबर्स, 5 plus 9, राइट, 14, 2 minus 2, right? So 14 is actually a result of task 1, right? 2 is a result of task 2 and 3 is a result of task 3, right? So this is the loss, हमने मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई नहीं किया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द लॉस ऑफ नॉट अप्लाइंग द मल्टी थ्रेडिंग इनसाइड योर एप्लीकेशन। लॉस क्या है, लॉस ये है कि मैं ये चाहता था कि मेरा टास्क 2 और टास्क 3 हमेशा होता रहे, राइट, लेकिन वो नहीं हो रहा, वो स्टक हो गया है। क्यों स्टक हो गया है, बिकॉज माई पेरेंट class is actually waiting for me to insert two numbers, और जब तक मैं insert नहीं कर देता ये सम नहीं करेगा, जब तक ये सम का रिजल्ट नहीं दिखा देता ये ना इंक्रीमेंट करेगा ना डिक्रीमेंट करेगा। ये नुकसान हुआ हमें यहाँ पे, ठीक है, राइट। हमें चाहिए क्या था, हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि मैं चाहे इनपुट करूं चाहे ना करूं, ठीक है, मैं कभी भी, मैं चाहे 10 मिनट बाद इनपुट करूं लेकिन मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमेशा चलता रहना चाहिए था, ठीक है। ओके तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट अप्रोच नंबर 3, मेकिंग डिफरेंट क्लासेस फॉर डिफरेंट थ्रेड्स। हमें अब कितने थ्रेड चाहिए, हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरी मेन प्रोसेस ये एडिशन वाला काम करे, लेकिन एक एक जो थ्रेड है वो इंक्रीमेंट करे और दूसरा थ्रेड जो है वो डिक्रीमेंट करे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब दो थ्रेड्स चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, public class t1, right? Okay, okay, तो मैंने ये t1 क्या है, ये पहला थ्रेड है मेरा, थ्रेड 1 extends thread, right? Okay, public class t1 extends thread. Okay, right. So I cannot write public over here, right? So public एक पैकेज में एक ही पब्लिक आपकी क्लास होगी, ठीक है। सो यू कैनॉट डिक्लेयर मल्टीपल पब्लिक क्लास इन अ सिंगल पैकेज, राइट। सो ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थ्रेड जो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ एंड दिस इज द सेकेंड थ्रेड। ओके राइट, ओके ठीक है। सो एक्सटेंड्स थ्रेड, सो ये जो है दैट this class will be the parent of my t1 class। extends, आपने अगर inheritance पढ़ी होगी जावा में तो आपको extends का मतलब पता होगा, right? Whenever we write extends we mean that the class that is written next to extends term or keyword will be a parent of the class that is written before the term extends, right? So the thread will be the parent of t1 and the thread will be the parent of t2। what is thread, the thread is a class, right? and ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है from the package java.lang and the java.lang package is automatically imported। हमें ऊपर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है import java.lang.thread, ठीक है, ये automatically imported होता है, right? okay, so अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू राइट द इंजन ऑफ अ थ्रेड, ठीक है। थ्रेड का इंजन बनाने वाले हैं हम, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। वो क्या है, पब्लिक वॉइड रन, राइट। सो पब्लिक वॉइड रन इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ इंजन, राइट। इससे ये जब हमने नहीं लिखा था तो इसका मतलब ये था कि वी हैव मेड अ कार। अब यहाँ पे
इसका मतलब क्या है, इतने पोर्शन का मतलब ये है कि वी हैव मेड अ कार विदाउट इंजन, राइट। अब ये क्या बन गया, वी हैव मेड अ कार विद इंजन, राइट। अब ये इंजन है इसका, ओके। नाउ वट एवर यू विल बी डूइंग, वट एवर, ये जो T1 थ्रेड है, ये कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा, ये पब्लिक वाइड रन के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस इज वाई आई एम सेइंग दैट द पब्लिक वाइड रन इज a property or a function of a thread, right, which acts as an engine of a thread. This function executes the statements those are to be executed inside it, right? So ये public void run is actually a property of this class. Okay, fine. So मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, while true, मैं forever loop चलाने वाला हूँ यहाँ पे कि हमेशा इंक्रीमेंट होता रहे और हमेशा डिक्रीमेंट होता रहे, राइट। सो अब यहाँ पे ये जो टास्क 2 है, टास्क 1 मेरी पेरेंट प्रोसेस करेगी, टास्क 2 जो है वो मेरा T1 करेगा, और टास्क जो 3 है वो T2 करेगा, राइट। तो मैंने ये टास्क ये जो INC इंक्रीमेंट का टास्क है, ये मैं T1 को दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से उठा के इस टास्क को मैं ला रहा हूँ यहाँ पे, राइट, ओके। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा ना, तो ये इतना फास्ट होगा कि आपको दिखाई नहीं देगा इसकी कंप्यूटेशन, ये इंक्रीमेंट कब कर रहा है। तो इसके लिए ना मैं एक यहाँ पे एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ, एंड दैट फंक्शन इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ऑफ योर थ्रेड क्लास। इसका नाम है स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है। सो ये फंक्शन एक इंटीजर नंबर लेता है जो कि मिली सेकेंड्स में होता है। सो यह मैं 1 सेकंड का टाइम दूंगा इसको, ताकि इंक्रीमेंट करने के बाद 1 सेकंड पॉज ले और फिर उसके बाद दूसरा इंक्रीमेंट करे। तो डिक्रीमेंट केस के वाले केस में भी हम यही करेंगे, ठीक है। सो ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। सो थ्रेड डॉट स्लीप फंक्शन नीड्स टू बी एक्सेप्शनली हैंडल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ये इंप्लीमेंट करनी होगी if you are using thread.sleep. Otherwise there is no need to use try and catch, right? Okay, thread.sleep। और अब क्यों 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 हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। we need some time to see the result, right? तो 1 सेकंड का पॉज है ये, ठीक है। ओके, सो सेम हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट वाले टास्क को हम ला रहे हैं नीचे। कौन से, पहले तो इसका इंजन बनाएंगे, ओके। जो दूसरा थ्रेड है, पहले थ्रेड का काम हमने कर लिया, ओके। सो नाउ दूसरे थ्रेड का इंजन बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड रन, ओके। सो नाउ यहाँ पे भी वाइल ट्रू, ये भी हमारा हमेशा चलेगा। हम चाहते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट और ऑमेंट और डिक्रीमेंट हमेशा होता रहे, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये जो हमने ऊपर से कट किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, राइट। उसके बाद सिस्टम डॉट, ये जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे पेरेंट में, वो हमारा पेरेंट जो है वो असाइन कर रहा है थ्रेड को, राइट। यहाँ पे हमने असाइन कर दिया, हमें डिक्रीमेंट दिख सके, ठीक है, हमारी आंखें देख सकें, आई एम सॉरी। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ लिटिल पॉज ओवर हियर, right, while decrementing, right, and we are done with the programming of thread 1 and the programming of thread 2, right. So इंजन बन चुका है, थ्रेड बन चुका है, राइट। अब हमें ये इंजन स्टार्ट करना है, ठीक है। इंजन स्टार्ट कौन करेगा, इंजन स्टार्ट करेगी आपकी मेन प्रोसेस, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। टेस्ट, अब हमारे पास 3 क्लासेस हैं, टेस्ट, T1, T2, right, whereas your test is a main class or a main thread or a parent process, right, which will trigger or which will start your both threads over here, which is T1 and T2, right. Okay, so the T1 is a thread, जो एक वर्कर थ्रेड है जिसके पास अपना काम है। T2 इज अनदर थ्रेड जिसके पास अपना काम है, यूनिक काम है। सो T1 के पास इंक्रीमेंट का काम है और T2 के पास डिक्रीमेंट का काम है, ठीक है। हमें क्या सॉल्यूशन चाहिए था, मैं चाहे इनपुट करूं चाहे ना करूं, मैं चाहे 10 मिनट लूं एडिशन करने में, लेकिन मेरे ये 2 काम हमेशा होते रहने चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। मैं चाहे फेसबुक ओपन करूं या ना करूं, मैं चाहे फेसबुक पे चैट का रिप्लाई करूं या ना करूं, लेकिन मेरी 2 मूवीज हमेशा डाउनलोड होती रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब ये है,
ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मुझे अब दोनों थ्रेड्स स्टार्ट करने हैं। मुझे आई एम अ पेरेंट प्रोसेस, सो बिफोर स्टार्टिंग माय ओन टास्क आई नीड टू ट्रिगर माय टू चाइल्ड प्रोसेसेस और माय टू थ्रेड्स। तो उन्हें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे उनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। न्यू T1, राइट? ओके, T2 is equal to sorry, T2 thread 2 is equal to new T2, राइट? मैंने अब क्या किया, अब यहां पे क्या किया मैंने, ठीक, मैंने यहां पे T1 और T2 का ऑब्जेक्ट बनाया इन ऑर्डर टू एक्सेस a particular class or in order to access the particular function of a particular class, you need to make a thread of that particular class. I think you're familiar with this subject because this is the first and the foremost concept of the Java object making, right? Okay, so I'm going to start the first thread. So I'm sorry. So here, what I'm going to use, I'm going to use a function of a thread class that is named as start function. ये start function किसकी property है? Thread की property है, right? So यहाँ पे ये start function कार की चाबी की तरह काम कर रहा है, right? It is acting as a key of the vehicle, right? And similarly, हम क्या करेंगे? हम दूसरा thread भी start करने वाले हैं। ओके, थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग से स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, हमें हमें दो इनपुट्स लेनी है। ओके, T1 और T2 हमारे पास दो थ्रेड्स हैं, हमने उनको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर दो इनपुट्स लेने के लिए हमने दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए, दो वैल्यूज इनपुट करवाई, राइट, उनका सम करवा के रिजल्ट यहाँ पे डलवाया और यहाँ पे टास्क 1 डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। क्योंकि हम दो थ्रेड्स पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो हमारा टास्क 2 और टास्क 3 हमेशा होता रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो अब यहाँ पे आप नीचे रिजल्ट देखिएगा। देखो, मैंने अभी तक, अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, दोनों थ्रेड्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है हमारे। मैंने अभी तक कुछ भी इनपुट नहीं किया, ठीक है। आई कैन गिव द इनपुट साइमल्टेनियसली और उसका अफेक्ट दोनों थ्रेड्स के काम पे नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे 5 और 7 इनपुट करने वाला हूँ। 5 7 12, आपने देखा रिजल्ट यहाँ पे, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे 100 और 200 इनपुट किया और 300 मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो इट मींस दैट माई पॉज डज नॉट अफेक्टिंग अदर टू टास्क, वो दोनों कंकरेंटली काम कर रहे हैं और मेरा भी टास्क कंकरेंटली काम कर रहा है, कुछ भी हैंग नहीं हो रहा, ठीक है। तीनों टास्क पैरेलल में चल रहे हैं, मैं जब चाह रहा हूं मैं तब एडिशन करवा पा रहा हूं और जो सीपीयू है वो मुझे भी अटेंशन दे रहा है, ठीक है। और सीपीयू साइड बाय साइड मेरे दो काम भी कर रहा है, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। सो ये प्रोग्राम जो है ये मैं चैट में आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने सिस्टम पे इसको चला के देख सको और इसका रिजल्ट आप अपने अपने आप से ऑब्जर्व कर सको, राइट। और इसके बाद हम दूसरा तरीका देखेंगे, राइट। सो आई हैव सेंट दिस प्रोग्राम इन चैट, राइट। एंड यहां तक कोई भी क्वेश्चन है? डू यू हैव एनी क्वेरी? यस, प्लीज रिप्लाई, डू यू हैव एनी क्वेरी? Okay, thank you so much. Thank you so much for replying. Okay, so we are going to start with the another method, right? So that method was all about, I think, yeah, okay. So I'm going to terminate this program, right? Okay, so so this was the first, right? So now the second, what is the second method to implement the thread? We can make an anonymous class of thread inside our main class. So हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये अलग से क्लासेस नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एनोनिमस क्लास बनाने वाले हैं, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, इसको अभी अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम यहीं से कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक एनोनिमस क्लासेस, राइट। सो
I'm going to delete these all kind of things from here, right? Okay, so thread thread t t1 or t1 is equal to new thread, right? And after that, new runnable, new runnable. Okay, I'll make you understand that what I did till now, right? So please, पहले मुझे बस एक बार ये program लिख लेने दीजिए, तो then I'll let you know that what is being done over here, right? Okay, so we made an anonymous class of thread 1, right? Class inside a class is known as anonymous class. Okay, the दूसरे का भी ऐसे ही करते हैं, T2. Okay, right. So we are done with the second thread, right? So we made the two anonymous classes for two distinct threads. Thread 1, so इसका syntax ये है, ठीक है? Thread 1, thread T1 is equal to new thread, new run able, public void run. So this is again an engine of our thread, right? So similarly, thread 2, new thread, new run able, and the public void run. So this is another engine of the thread 2, right? So over here, what I'm going to do, t1 dot start, and what I'm going to do over here, t2 dot start, right? Okay, so मैंने anonymous class बनाई और दोनों थ्रेड्स को स्टार्ट करने का यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दिया, राइट? लेकिन अभी काम असाइन कर देते हैं इनको, अभी अभी हमने काम असाइन नहीं किए हैं, ठीक है? सो काम क्या है हमारे, दिस, राइट? सो यहाँ पे मैंने एक इंक्रीमेंट का ये किया, राइट? एंड while true we need to copy and paste this whole piece of code from here to here, right? And what I'm going to do, I'm going to okay, right? So पहला टास्क हमारा असाइन हो चुका है थ्रेड को, राइट? So in the first anonymous class of thread y, what I did, I made an anonymous class, I made an engine of that particular thread, then I assigned a task to that particular anonymous thread 1, right? Okay, so similarly दूसरे के लिए भी ऐसा ही करते हैं. So int dec is equal to 0, and यहाँ पे हमने decrement variable initialize कर दिया, and after that, while true, and right, so we are done with this one, right? So okay, so that there is a dec, it must be a dec, right? So we are done with this, right? So let us try to run this code. I'm going to delete this extra code from here, right? Because we have copied and pasted all kind of things above here. So okay, right, I'm going to run this. So as you can see, right? So this was the another method to implement the thread, right? With by making use of anonymous class. So दोनों थ्रेड जो है वो हमारे ट्रिगर हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? और वो अपना काम कर रहे हैं. एक थ्रेड इंक्रीमेंट करके डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, एक सेकंड के बाद, और दूसरा थ्रेड जो है वो डिक्रीमेंट करके रिजल्ट हमें दे रहा है. मैं इनपुट करने वाला हूं 70 + 10 80. आपने रिजल्ट देख लिया, राइट? मैं अगेन दोबारा से एंटर करने वाला हूं 24 + 10 34, right? So this is the result. So this was the second approach to apply the multi-threading, right? Do you have any confusion for this approach? Please reply me over here. Do you have any question? Okay, I will explain this method again. Okay, fine. Any other kind of question do you have? Okay, so Vinay is saying that I need to explain this method again, right? So I'm going to explain this method again, right? So हमने विनय यहाँ पे क्या किया? Last method में हमने दो classes other than
जो हमारी टेस्ट क्लास थी वो बनाई थी। मतलब हमारे पास 3 अलग अलग क्लासेस थी, ठीक है। टेस्ट के बाहर 2 क्लासेस थी। अब यहां पे हमने क्या किया, हमने टेस्ट के अंदर ही 2 क्लासेस बना दी, ठीक है। सो पहली क्लास क्या है, पहली क्लास है थ्रेड T1। सो पहली जो क्लास है वो हमारी थ्रेड की क्लास है, ये पहली एनोनिमस क्लास है। ये चीज याद रखना कि एनोनिमस क्लास होती है जब हम क्लास के अंदर क्लास बनाते हैं, ठीक है। सो क्लास के अंदर क्लास बनाई, ठीक है। सो पहली क्लास हमने T1 बना दी, ठीक है। और कुछ नहीं किया, बस उसको काम असाइन कर दिया, ठीक है। हमारा थ्रेड 1 जो था उसको हमने काम असाइन किया और उसको स्टार्ट कर दिया। दूसरी एनोनिमस क्लास बनाई थ्रेड 2 के लिए, ठीक है। उसको उसका काम असाइन किया और उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मेरी जो पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, उसका अपना काम, मतलब इस क्लास का काम, ठीक है। ये देखो नीचे आ रहा है ना, इंट ए इज इक्वल टू 0, इंट बी इज इक्वल टू 0। ए और बी में क्या आएगा, जो मैं इनपुट करूंगा, ठीक है। मुझे जो जो 2 चीजें सम करवानी है, तो जो 2 चीजें सम हो जाएंगी उसका रिजल्ट मैंने आरईएस में डाल दिया, ठीक है। और आरईएस में डालने के बाद उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। सो टास्क 1 एंड्स हियर, ठीक है। सो टास्क 1 मेरा यहाँ पे हो रहा है। टास्क 1 मेरी पेरेंट प्रोसेस हैंडल कर रही है, ठीक है। मैं इनपुट दे रहा हूँ अपनी पेरेंट प्रोसेस को, ठीक है। और टास्क 2 जो है वो, और टास्क 2 और टास्क 3 जो है वो मेरे दोनों थ्रेड्स जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो कोई कोई क्वेश्चन? हाँ जी विनय, आपको समझ आया? Any question? Okay, right, fine. So the last method to, or the last way to implement the multi-threading is the implementation of the runnable interface over your parent class, right? अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टास्क हों, ठीक है। आपके पास सिर्फ 2 टास्क हैं, ठीक है। तब आप ये रनेबल इंटरफेस वाला मेथड यूज कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 2 से ज्यादा टास्क हैं, ठीक है, तो आप जो हम पहले 2 मेथड कर चुके हैं वो वाला मेथड यूज कीजिए। मैं पहले ये कोड आपको सेंड कर दूं चैट में, ठीक है। सो या आई एम सेंडिंग दिस, ओके। सो ये जो 2 कोड मैंने अभी तक सेंड कर दिए हैं, दैट वाज द मेथड 3 एंड मेथड 2। मेथड 3 क्या है, मेकिंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिफरेंट थ्रेड्स। ये हम कब करते हैं, जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा काम होते हैं, ठीक है। ओके, एनो दूसरा कोड जो मैंने सेंड किया उसमें हमने क्या किया, मेकिंग ऑफ एनोनिमस क्लासेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स इनटू योर मेन क्लास, राइट। वो भी हम कब करते हैं, जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा टास्क करने के लिए होते हैं, ओके। लेकिन अब जो हम काम करने जा रहे हैं, दैट इज implementation of runnable interface on your main java class, ठीक है। हमारे केस में जो मेन जावा क्लास है वो कौन सी है, आई एम सॉरी, वो है ये क्लास टेस्ट, ठीक है। सो यहीं पे हम एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे जिसका नाम है रनएबल। और ये जो रनएबल इंटरफेस है, दैट इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास नेम्ड थ्रेड। हर एक चीज जो है ये हमारी थ्रेड क्लास से ही रही है, ये सारी लैंग पैकेज से ही आ रही है, ठीक है। कोई अलग से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सो अब इसका इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका कौन क्या है, ये जो मेथड अब हम यूज करने जा रहे हैं, इस मेथड से एक टास्क हमारा पेरेंट क्लास हैंडल करेगा और एक जो दूसरा टास्क रह गया वो हमारा जो थ्रेड है वो हैंडल करेगा। मतलब इसमें हम एक ही थ्रेड बना सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक ही थ्रेड बना सकते हैं, एक से ज्यादा थ्रेड नहीं बना सकते हैं। सो अगर आपकी जरूरत यह है कि आपको एक ही थ्रेड बनाना है तो आप रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कीजिए। लेकिन अगर आपकी नेसेसिटी ये है कि आपको मल्टीपल थ्रेड्स बनाने हैं, तो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट ना कीजिए, जो मैं अभी करने वाला हूं। जो पहले 2 हम कर चुके हैं वो कीजिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अब सिनेरियो हमारा थोड़ा सा कम हो गया। अब हमारे पास 2 टास्क हैं, ठीक है। पहला टास्क
दो नंबर्स को इनपुट करवाना, उनका सम करवाना और डिस्प्ले करवाना। दूसरा टास्क एक नंबर को इंक्रीमेंट करवाना और उसको डिस्प्ले करवाना, या फिर एक नंबर को डिक्रीमेंट करवाना और उसको डिस्प्ले करवाना। ठीक है, हम दो टास्क ही कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें से एक टास्क आपका पेरेंट प्रोसेस करेगा और दूसरा टास्क करेगा आपका थ्रेड। ओके राइट। सो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये फालतू का कोड यहां से हटाने वाला हूं। राइट, लेट अस लेट्स कमेंट दिस कोड फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि हमें जरूरत की चीजें यहां से मिल सके। ओके, सो पहला टास्क हमारा यहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट टास्क। ठीक है, दो नंबर्स को इनपुट करवाना और उनका सम करवा के उनको डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, दूसरा टास्क हमारा क्या होगा, हम दो 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 में से एक यूज करेंगे, हम या तो इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। ओके, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू implements, I'm sorry, implements runnable। ओके राइट, देखिए अब यहां पे ध्यान से सुनिए, इंटरफेस इज ऑलवेज, इंटरफेस अगर आप यूज करने वाले हैं, दो चीजें होती हैं जावा में, वन इज अ क्लास एंड सेकंड इज एन इंटरफेस। राइट, ओके, द जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड इन ऑर्डर टू implement multiple inheritance virtually we can make use of the interfaces। ठीक है, सो इंटरफेस जो है उसको हमेशा इंप्लीमेंट किया जाता है, जबकि जो क्लास है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज नाउ दिस रनएबल इज एन इंटरफेस, आई एम रिपीटिंग, रनएबल इज नॉट अ क्लास, रनएबल इज एन इंटरफेस, दिस इज व्हाई आई हैव रिटन इंप्लीमेंट्स ओवर हियर। मैंने यहाँ पे एक्सटेंड्स नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट्स लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि रनएबल कोई क्लास नहीं है, runnable is an interface, and if you are implementing some interface then you have to list all the methods of that particular interface। मतलब इस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होंगे वो आपकी क्लास के टेस्ट के अंदर आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे या डिफाइन करने पड़ेंगे। रनेबल के अंदर कौन सा फंक्शन है, रनएबल इंटरफेस के अंदर जो फंक्शन है उसका नाम है पब्लिक वॉइड रन, दैट इज अगेन एन इंजन ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, जो कि हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ठीक है, एरर क्यों दिखा रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट तो कर लिया, लेकिन आपने उसका उनके मेथड्स को डिफाइन नहीं किया इस क्लास में। ठीक है, आपने मेथड्स इंप्लीमेंट नहीं किए। जब तक आप मेथड किसी इंटरफेस के इंप्लीमेंट नहीं करते हो, आपका जो कोड है वो हमेशा एरर दिखाता रहेगा एंड इट विल नॉट बी सक्सेसफुली कंपाइल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो एरर चला जाएगा, लेकिन एक नई चीज ऐड हो गई। क्या चीज ऐड हुई, पब्लिक वॉइड रन। जैसे कि मैंने कहा था कि रन एबल इंटरफेस जो है इसके अंदर जो फंक्शन है उसका नाम है public void run, because we have implemented a runable interface, so we have to specify or define the function of that particular interface inside our class। right, okay, so ये मैंने वहां पे सिंपली क्लिक किया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई हो गया, दैट इज एक्चुअली अ मैजिक ऑफ एक्लिप्स आईडीई। अदरवाइज मैं यहाँ पे इसको टाइप करके भी स्पेसिफाई या डिफाइन कर सकता था। ओके, सो सिंपली अब हमारे पास पब्लिक वर्ड रन है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको इंक्रीमेंट का टास्क दे देता हूं। ओके, सो ये यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया और उसके बाद वाइल ट्रू। ओके, सो यहाँ पे मैंने वाइल ट्रू कॉपी किया ताकि हमेशा ये काम करता रहे। वाइल ट्रू मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया। ओके, सो yeah, okay, so it will increment it always, and after 1 second it will increment it always, and it will display it always, and after 1 second it will repeat its task, right? So what I need to do now, I need to अब हमने क्या किया, हमारे पास इंजन आ गया, हमने उसको काम दे दिया, लेकिन इस थ्रेड को स्टार्ट कैसे किया जाए। ठीक है, बात ये है ना कि अब इसको स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारी थ्रेड क्लास है उसका एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा टास्क है। ठीक है, वो क्या है, थ्रेड
T1 टास्क 1, ठीक है, या वट एवर जो कुछ भी आप लिख सकते हो, TSD लिख दिया मैंने, ठीक है, न्यू थ्रेड। और इस क्लास को बताना पड़ेगा कि जो थ्रेड है वो इम्प्लीमेंटेड कहाँ पे है। मतलब इस क्लास को बताना पड़ेगा, इसके कंस्ट्रक्टर में इस क्लास को ये बताना पड़ेगा कि इंजन कहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, पब्लिक वॉइड रन कहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, कहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, हमारी टेस्ट क्लास में ही इंप्लीमेंटेड है। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिख दूंगा दिस, ठीक है, और cannot use this in static. Okay, right. So cannot use this in static. So what I can do, uh, I can get out of क्योंकि this जो है test और this, okay, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ test dot, okay, still I cannot use this in static. So because the void main function is actually a static function. So ये जो this है, ठीक है, this keyword cannot be used in a static field, अगर आपको पता हो। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करूंगा, आई हैव टू गेट आउट ऑफ द स्टैटिक फील्ड, ठीक है। ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ना, तो हमारा जो मेन फंक्शन है दैट इज एक्चुअली स्टैटिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन द एरिया ऑफ अ स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। तो यहां से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं अपनी ही क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। ये शायद आपने कभी किया होगा, ठीक है, राइट, जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये चीज आपने कभी की होगी, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। सो मैं आपको ये शुरू से समझाऊंगा कि मैंने क्या किया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी ही क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, ठीक है। ओके, एक चीज और रह गई है यहाँ पे, पहले मैं इसको रन कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया। ओके, ये फालतू का कोड मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। ओके, ठीक है, I'm going to launch this code, I'm going to launch this task, right? Okay, so आप देख पा रहे हो, ठीक है, the increment thread is started up, right? ये जो हमारा थ्रेड है ये चल चुका है, ठीक है। और my parent process is actually waiting for me to enter two numbers ताकि ये सम कर सके और डिस्प्ले करवा सके। सो मैंने पहला नंबर क्या इनपुट किया, 90, दूसरा नंबर इनपुट किया 10, और सम आ गया 100, ठीक है। दोबारा से देखो, मेरा टास्क जो अलग से होना चाहिए था वो लगातार चल रहा है, वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो इस मेथड से मेरा थ्रेड चल रहा है, वो इंक्रीमेंट लगातार करवाता जा रहा है, अपना काम करता जा रहा है, ठीक है। और मेरा जो पेरेंट प्रोसेस है वो मेरी इनपुट भी ले पा रहा है और सम भी करवा पा रहा है, जैसे पहले हो पा रहा था। मैं दोबारा से इनपुट कर रहा हूं, 200 प्लस 300, राइट, इज 500, आप देख पा रहे हो, ठीक है। सो मेरे दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं, मेरा सम का काम भी हो रहा है, मेरा इंक्रीमेंट का काम भी हो रहा है, ठीक है। सो अब मैं आपको समझाता हूं दोबारा से कि क्या किया हमने यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक पब्लिक क्लास थी, ठीक है, जो कि पेरेंट प्रोसेस थी, उसका नाम था टेस्ट, ठीक है। हमने उसको एक काम दिया, ठीक है, जो था इंट a इज इक्वल टू 0, इंट b इज इक्वल टू 0। हमने वो काम हमेशा करना था, तो मैंने यहाँ पे वाइल ट्रू लगा दिया, राइट। और मैंने पहला नंबर इनपुट करवाया, दूसरा नंबर इनपुट करवाया, इनपुट करवाने के बाद मैंने दो नंबर्स को सम करवाया, और सम करवाने के बाद जो मेरा पेरेंट प्रोसेस है उसने रिजल्ट जो था वो सम का डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है, ठीक है। Now the next story. Now, I had another task also. I had to increment one number after 1 second and display it again and again. Right? तो ये मेरा दूसरा टास्क था। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने रन एबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया। क्यों किया, क्योंकि मुझे एक चाइल्ड प्रोसेस बनानी थी, एक थ्रेड बनाना था, ठीक है। सो public class test implements runnable. Runnable is an interface of a class थ्रेड, ठीक है, और अ प्रॉपर्टी ऑफ थ्रेड, ठीक है। सो इसको मैंने इंप्लीमेंट किया। जैसे ही मैंने इसको इंप्लीमेंट किया तो यहाँ पे एक एरर आया,
क्यों आया? वो ये कह रहा था कि आपने रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट तो कर लिया, लेकिन आपने उसका इंजन नहीं क्रिएट किया, आपने पब्लिक वॉइड रन नहीं स्पेसिफाई किया। तो मैंने वो भी कर दिया, ठीक है। ओके, हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क था एक नंबर को हमेशा इंक्रीमेंट करवाते रहना। मैंने उसको उस इंजन में वो टास्क भी लिख दिया। ओके, अब लास्ट काम क्या रह गया है? लास्ट काम रह गया है थ्रेड को स्टार्ट करना, ठीक है। मैंने थ्रेड को स्टार्ट करने की कोशिश की थी यहाँ पे स्कैनर के नीचे, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मुझे अपनी जो मेरी ये क्लास थी, थ्रेड क्लास थी, उसको ये बताना था कि उसका इंजन कहाँ पे पड़ा है, किस क्लास की कॉन्टेक्स्ट में पड़ा है। मेरी ही क्लास के कॉन्टेक्स्ट में पड़ा है, टेस्ट में पड़ा है, ठीक है ना। टेस्ट के अंदर आता है, ये देखिए स्कोप के टेस्ट के अंदर आ रहा है, टेस्ट के स्कोप के अंदर आ रहा है रन, ठीक है ना। तो मुझे इस क्लास को ये बताना था रन कहाँ पे पड़ा है। दिस उसको कहना था कि यहाँ पे पड़ा है, ठीक है ना, मेरे ही अंदर पड़ा है, मेरी ही क्लास में पड़ा है। लेकिन मैं दिस जो है वो स्टैटिक फील्ड में यूज नहीं कर पाता, ठीक है। मैं वी कैनॉट मेक यूज ऑफ दिस कीवर्ड इन अ स्टैटिक फील्ड और अ स्टैटिक फंक्शन। तो मुझे क्या करना पड़ा? मुझे एक सेकंड राउट लेना पड़ा, मुझे स्टैटिक से बाहर आना पड़ा, ठीक है। बाहर कैसे आया? मैंने अपनी ही क्लास का, टेस्ट क्लास का एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया, खाली कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर का नाम आपकी क्लास के नाम के साथ मैच होना चाहिए, पहला रूल है, ठीक है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर दो तरीके का होता है, ब्लैंक, नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है, या फिर पैरामीटराइज्ड। पैरामीटर दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, हमें जरूरत नहीं थी तो हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा इसको, ठीक है। और ये जो लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा था, ये लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा था इसके बाद, ठीक है, लेकिन ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। मुझे थ्रेड भी तो स्टार्ट करना है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे दिस लिख पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आवर आवर कंस्ट्रक्टर इज नॉट स्टैटिक, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ना तो स्टैटिक होता है, ना हमारे कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है, कोई कोई समथिंग इंट नहीं है, कोई समथिंग वॉइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और कुछ स्टैटिक वैटिक नहीं है, ठीक है। तो ये स्टैटिक नहीं था, तो मैं यहाँ पे दिस लिख पाया और मैंने अपना थ्रेड स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली एंड इवेंचुअली we were able to run our thread and we were able to perform two tasks at the same time. So आप देख पा रहे हो अभी हमारा ये जो थ्रेड है ये 303 पे पहुंच गया है। अभी भी I can input something 700 plus 100 is equal to 800, ठीक है। सो एक ये मेथड था हमारे जो हमारा थ्रेड है उसको बनाने का। सो यहां तक कोई भी क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन? Yes, anybody? Any confusion? Any query? I'm waiting for your message. That's great. Okay, I'm delighted that this is clear. Okay, so I'm just gonna copy this code and paste into this editor, right? So here you go. So आपके पास अब तीनों methods के कोड आ चुके हैं, ठीक है। So now you are good to go with the multi-threading in Java, right? So if you want to be an Android developer, this multi-threading code or this multi-threading knowledge will serve as a god for you, right? ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप Google Play Store से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, वो सारी एप्लीकेशंस मल्टी-थ्रेडेड होती हैं, ठीक है। ऐप स्टोर से कुछ भी आईफोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो सारी एप्लीकेशंस मल्टी थ्रेडेड होती हैं, ठीक है। आपने शायद कभी एंड्रॉयड फ़ोन में कोई एप्लीकेशन कभी खोली हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम कोई बटन दबाते हैं तो वो ना बटन दबा ही रह जाता है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता। और कुछ टाइम के बाद आता है कि एक मैसेज आता है एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। कभी आपने ये देखा? और अगर ये देखा तो इसका मतलब ये है कि वो एप्लीकेशन जो है उसको स्मार्टली नहीं बनाया गया, ठीक है। उसको उसको मल्टी थ्रेडेड नहीं किया गया। वो जैसे ही बटन दबा तो वो एप्लीकेशन टाइम मतलब वो एक ऐसे रिस्पॉन्स में फंस गई, वो एक ऐसे
ऐसी सिचुएशन में फंस गई कि उसको रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना, राइट, एंड इवेंचुअली इट हैंग्ड, ठीक है। सो हैंग से बचने के लिए यू हैव टू, देखो मल्टी थ्रेडिंग के दो फायदे हैं, ठीक है ना, यू कैन अवॉइड हैंग, ठीक है, आप हैंग से बच सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन को हैंग से बचा सकते हो, यू कैन एनरिच योर यूजर्स एक्सपीरियंस, राइट, एंड दूसरा यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। सो दो हमारे यहाँ पे बड़े फायदे हैं मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के, ठीक है। ओके, सो हमने कोडिंग पार्ट जो मल्टी थ्रेडिंग का था, ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 ये हमने कर लिया, राइट। आई थिंक दिस पीपीटी वाज ऑल अबाउट दिस वन। एक बार गो थ्रू हो लेते हैं जल्दी से कि इसमें एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू विप्रो देयर इज अ जावा प्रोग्रामिंग रिलेटेड टू द मल्टी थ्रेडिंग, राइट, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, तीन तीन पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। सो देखते हैं इनमें क्या क्या कहते हैं, राइट। ओके, सो okay, as I said, the multi-threading is actually a property of java.lang.thread in Java. So Java has a native support for the multi-threading, right? And okay, fine. So it implements runnable and all these kind of things that we did already. So ये सारी ही चीजें ये कह रहा है, right? Okay, yeah, we are done with this one, right? The start is actually kind of key to actually trigger your thread, or actually in order to start your
Hello students, am I audible now? Hello, am I audible now? Yes, sir. Okay. I'm so sorry for this inconvenience. Actually, there was a power failure, and due to this, my desktop was suddenly turned off. Although it is connected on inverter power supply, but I don't know what happened exactly. Okay, anyways, well, I'm just gonna run Eclipse again. Uh, no, I think there is no need to run Eclipse now because we are already done with the programming part. So I'm just gonna jump into the second PPT sent by the Wipro, and yeah, okay. So mm, is my screen visible to you? Wait, let me share my screen. So is it visible to you? Kindly reply, please. Thank you so much, Karthik. Thank you. Okay, right. So we were actually talking about that start function right over here. Uh, there was something we were actually about to land on the start. Yeah, okay. So we were here. So start function, we have already discussed about the start function, that what start does, right? And how to, I mean, how to start a thread. So this is all about, I mean, starting a particular thread at a particular point of time. And run function is actually an engine of a thread in which you will specify your all statements to be executed, right? Okay, okay, yes, this is true that the thread dies when the run method terminates. In our case, we have made use of a while true, right? So while true is actually a forever loop, right? So in our case, इसने जो हमारी स्टेटमेंट्स थी उनको बार बार एग्जीक्यूट करवाया और हम हमेशा रन में रहे, ठीक है। इफ इन केस अगर हम वाइल ट्रू यूज ना करते तो रन टर्मिनेट हो जाता, ठीक है, मतलब हम रन से बाहर निकल जाते और हमारा जो थ्रेड था वो इमीडिएटली डाई हो जाता, ठीक है। ओके, yes, this is true that you cannot run the thread explicitly, right? uh, and this is actually a small life cycle of a thread that you created a new thread, right? And as soon as you your interpreter executed a dot start line of your code, then your thread will be ready to run, right? So runable is runable means your thread is now ready to run the race, right? Now this is running, right? Now the thread is scheduled, the thread is now present into the ready queue or into the random access memory of your computer system. And now in this stage, in this state or in this stage, it means that your thread has acquired the attention of the CPU, right? Running, okay, dead. For an example, हमने while true use किया. So for an example, if we do not use the while true, then after executing the last statement of the public void run function, your thread will be terminated or dead, right? Okay, so हमने यूज किया था थ्रेड डॉट स्लीप, आपने कोड में देखा थ्रेड डॉट स्लीप। तो स्लीप का मतलब थ्रेड को टर्मिनेट नहीं कहा जाता, मतलब स्लीप का मतलब थ्रेड टर्मिनेट नहीं हुआ। स्लीप मींस योर थ्रेड has been set to pause for a minimum number of milliseconds or seconds, right? So your thread is right now in not a running state, but it is actually sleeping or at a pause state, and after a specific time interval it will return to a runable. I mean to say that यहाँ पे ये वेटिंग क्यू में है, राइट? और उसके बाद जब इसका एक स्पेसिफिक टाइम पूरा हो जाएगा इसकी वेटिंग पीरियड का, ठीक है, तो ये दोबारा रनेबल स्टेट में आ जाएगा। मतलब ये दोबारा सीपीयू को ये कहना चाहेगा कि ओके आई एम रेडी टू रन अगेन, सो प्लीज गिव मी योर अटेंशन, ठीक है। सो और उसके बाद फिर ये दोबारा से रनिंग में आ जाएगा। सो हमारी वाइल ट्रू में ये साइकिल चल रहा था, रनेबल, रनिंग, नॉट रनेबल, उसके बाद फिर यहाँ पे फिर रनिंग, नॉट रनेबल, फिर रनेबल, ये साइकिल वाइल ट्रू में लगातार चल रहा था, ठीक है।
ओके सो करंट थ्रेड एंड ओके ये जो फंक्शंस है ठीक है ये uh, ये जो फंक्शन है ये आपके करंट जो थ्रेड है उसकी इंस्टेंस को रिटर्न करता है राइट द नेम ऑफ द करंट थ्रेड ठीक है हमारे करंट थ्रेड का नाम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे थ्रेड का नाम क्या रखा ठीक है प्लीज बी इन्फॉर्म दैट ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी प्रोसेस की एक आईडी होती है जिसका नाम होता है प्रोसेस आईडी राइट और इसी तरह से जब प्रोसेस किसी थ्रेड को जनरेट करती है तो थ्रेड की भी एक आईडी होती है जिसका नाम होता है थ्रेड आईडी ठीक है टी आई डी राइट सो ये जो करंट थ्रेड है ठीक है इट विल रिटर्न यू एन आईडी और अ सिस्टम जनरेटेड नेम ठीक है जब आप करोगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन T1 डॉट करंट थ्रेड तो ये उसका नाम रिटर्न कर देगा ठीक है ओके okay so yeah information about the main or any other thread can be accessed by obtaining a reference to the thread right okay so this is actually a code that how to make use of this current thread function or how to do a programming of a thread right so आप अपने आप से भी नाम रख सकते हो t dot set name and all these kind of things right so here यहाँ पे लिखा हुआ है demo thread right okay so उसके बाद जब आप get name use करोगे t dot set name it means that you are actually setting a name of a thread right t dot get name means you are actually printing the name of the thread that you already settled right okay so you are familiar with this now हम ये पहले ही कर चुके हैं thread dot sleep right it will put your thread to sleep for a specific milliseconds right so your thread will be in a waiting queue it will be taken out from the running state to the waiting state and after this specific interval it will again enter into the runnable state right it will get into the ready queue right and it will request the CPU to I mean get its attention right okay जैसे कि मैंने कहा था कि अगर थ्रेड डॉट स्लीप यूज करना है तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करनी पड़ेगी राइट ओके सो रनेबल इंटरफेस या एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास ये हम कर चुके हैं ठीक है हमने इम्प्लीमेंटेशन को हमने रनेबल को भी इंटरफेस किया sorry we have already implemented the runnable interface right and also we have extended the two classes T1 and T2 if you remember right so we are done with both of these things यहाँ पे anonymous class के बारे में नहीं बताया गया नहीं लिखा गया हमने वो भी कवर कर लिया ठीक है right so creating a thread okay and implementing runnable interface and extending the thread class we are done with this we are done with this also creating thread extending the thread right yeah we are done with this right and we are done with this right and yeah okay so this is another thing right thread a runnable thread oh yeah तो इसका मतलब ये है this line actually says that when you are creating an object of a particular thread you can not only tell it that where is the public void run function located but also you can specify the name of the thread ठीक है यहाँ पे मैं अभी Eclipse ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे ये बात क्या हो रही है ठीक है ना ये इसका मतलब क्या है इस चीज का मतलब क्या है राइट सो अभी ये डाउट आपका यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ बिकॉज दिस इज अ न्यू थिंग टू यू yeah okay so according to this statement thread runnable thread object and string thread name right so we can leave this constructor blank or we can fill it with these kind of things right so हमने यहाँ पे देखो हमने जब runnable interface implement किया था तो हमने अपने thread को ये बताया था कि public void run जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है ठीक है हमने बताया था कि हमारे ही कॉन्टेक्स्ट में लोकेटेड है हमारी ही क्लास में लोकेटेड है तो हमने यहाँ पे दिस लिखा तो दिस क्या है दिस इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट
मतलब टेस्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टेस्ट का मतलब दिस का मतलब वी आर रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस आवर मेन क्लास, ठीक है। सो यहाँ पे यही है रन एबल थ्रेड ऑब्जेक्ट। रन एबल का जो पब्लिक वॉइड रन फंक्शन है वो कहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, दिस, ठीक है। तो ये वो चीज है, ठीक है। और स्ट्रिंग थ्रेड नेम, वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द नेम ऑफ द थ्रेड। फॉर एन एग्जाम्पल, here you can, like, you can name it, like for an example, incremental thread, right? So incremental thread, right? So मैं यहाँ पे इसका नाम दे सकता हूँ। So यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। So there is nothing special and nothing different, and this is all about start and run, right? Okay, start, हम थ्रेड को दो तरीके से रन कर सकते हैं। एक है डॉट स्टार्ट और एक है डॉट रन, ठीक है। सो डॉट स्टार्ट जब हम मेथड मल्टीपल थ्रेड्स के लिए यूज करते हैं ना, तो आपके मल्टीपल थ्रेड्स एक ही टाइम पे, मतलब एक ही शॉट में सारे सारे जो है वो चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने डॉट स्टार्ट यूज नहीं किया, आपने डॉट रन यूज किया, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आपके जो थ्रेड्स हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड मैनर में एक पूल में लग जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, टी1 है, टी2 है और टी3 है, ठीक है। अगर आपने टी वन डॉट स्टार्ट किया, टी2 डॉट स्टार्ट किया और टी3 डॉट स्टार्ट किया, ठीक है, तो तीनों थ्रेड्स एट अ टाइम चल जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है। अगर आपने टी1 डॉट रन किया, टी2 डॉट रन किया, टी3 डॉट रन किया, तो टी1 डॉट रन पहले होगा, टी टू और टी3 तब तक नहीं चलेंगे जब तक टी1 अपना काम नहीं कर लेता। जब टी1 टर्मिनेट हो जाएगा तब टी2 स्टार्ट होगा, जब टी2 टर्मिनेट हो जाएगा तब टी3 स्टार्ट होगा। तो ये डिफरेंट, तो ये दो डिफरेंस हैं डॉट स्टार्ट से थ्रेड को रन करने में, ठीक है, और डॉट रन से थ्रेड को रन करने में, ठीक है, राइट। सो दिस इज दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग। इन्होंने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट किया, हमने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। सो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको इस मेथड का पता चलना चाहिए, बस दैट इज इट, ठीक है। थ्रेड को कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से उसको काम में लाना है, वो सारी आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, so this is all about the extra theory of the thread, ठीक है। So you can yeah, okay, so this is very true. You can launch as many threads as your program needs. See, please believe me, you can launch 2000, 5000, 10,000 threads at the same time, right? मैं आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भेजूंगा जो कि मैंने बनाई थी, ठीक है। सो वो जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना, ठीक है, और उसको रन करना। वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है और वहाँ पे आप जो बटन मैं वहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये बटन जो है ये वाला बटन थ्रेड बनाता है, ठीक है। तो जितनी बार आप उस बटन को दबाओगे ना, उतनी बार मतलब थ्रेड बनते जाएंगे और काउंटिंग जो है वो उतनी ज़्यादा फास्ट होती जाएगी, ठीक है। तो वो एक्चुअली एप्लीकेशन काउंट करती है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, राइट। वो जो काउंटिंग वेरिएबल है ना, वो जितनी बार आप बटन दबाओगे वो काउंटिंग वेरिएबल एक्चुअली शेयर्ड होगा सारे थ्रेड्स में। सो वो सारे थ्रेड्स एक ही काउंटिंग वेरिएबल पे अटैक करेंगे। तो जितने ज़्यादा थ्रेड आप बनाओगे उतना ज़्यादा फास्ट इंक्रीमेंट होगा उस एप्लीकेशन में, ठीक है। सो यस, दिस इज़ रियली वेरी ट्रू कि आप जितने मर्जी मतलब कि थ्रेड्स जो हैं वो आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने ज़्यादा थ्रेड्स बनेंगे ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम पे उतना ओवरहेड भी बढ़ेगा, ठीक है। सो इट विल increase an amount of overhead on operating system as well as on CPU. Yours, आपका CPU जो है it has to context switch for the number of times, ठीक है। आपने जितने ज़्यादा थ्रेड बनाए उतनी ज़्यादा बार आपके CPU को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और उतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी, मतलब जितने थ्रेड्स बने वो सभी थ्रेड्स जो है अपनी प्रोसेस से रिसोर्स भी तो मांगेंगे, ठीक है ना। तो देयर विल बी सम बैटल फॉर रिसोर्सेज एंड देयर विल बी सम बैटल फॉर द मेमोरी स्पेस एज वेल एज द CPU, फाइन। सो there is a kind of trade off, right? Yes, this is true that you can launch as many threads as you want, but actually there is a trade-off that there are some cons of launching multiple threads also. Yes, this is true, right? Okay, so spawning
Yeah, okay. So this is the same example as we did in Eclipse. Okay, he is actually uh, starting T1 and T2, right? So time to think. Okay. Okay, summary. We have studied about the Java's multi-threading model, and we have studied about the thread class, right? Where it is located. Actually, it is located into the java.lang, right, package. And after that, we have studied that the different states of the threads, like run able, running, right, and after that we have studied terminated or dead, right, and we have studied about the run method, implementation of runnable interface, anonymous class, right, the start function and the run function. ठीक है. This is the homework for you to start the threads with the run function, right? So ये आपका homework होगा, ठीक है. So yes, the last we have done it also, right? So yes, we are done with this slide also, right? And before starting with this one, thread control and priorities, I need you to study about the thread first, right? मैं चाहता हूं कि आप पहले जितना आज हमने किया है आप इस पे होमवर्क कर लो, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करके देख लो, ठीक है. तीनों मेथड्स जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, आप अपने तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है. अपने तरीके से मल्टी थ्रेडिंग को अप्लाई करो, ठीक है, और अपने तरीके से आप अपने जावा के प्रोग्राम को रन करो. अगर कोई क्वेश्चन है, नोट करो उसे, ठीक है. नेक्स्ट मीटिंग में मुझसे पूछिए, ठीक है. जब सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, देन वी विल मूव टू द थ्रेड कंट्रोल एंड प्रायोरिटीज, ठीक है, कि थ्रेड को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, ठीक है. हमारे पास 3 थ्रेड हैं, तो तीसरा थ्रेड पहले चलना चाहिए, दूसरा थ्रेड बाद में चलना चाहिए, ब्ला 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 एंड दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है. वो सभी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है ना. मैक्स प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी, ठीक है. डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है, मैक्सिमम प्रायोरिटी हम क्या सेट कर सकते हैं जावा में, मिनिमम प्रायोरिटी हम क्या सेट कर सकते हैं है जावा में, ठीक है. बाय डिफॉल्ट सभी थ्रेड्स की प्रायोरिटी जो है वो सेम होती है, ठीक है, राइट. तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब आप आज का होमवर्क कर लेंगे और आज का सारा रिव्यू आप ले लेंगे, ठीक है. और थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन जो है, ये इसके बाद आएगा, ठीक है. कि अगर ये जो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन है, वी विल स्टडी इन थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन दैट फॉर एन एग्जांपल, if there is a one shared resource, or if there is one and only one variable, right, और मतलब चीज एक है, रिसोर्स एक है और उसको यूज करने वाले ज्यादा हैं, ठीक है ना. तो कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए, कैसे मल्टीपल थ्रेड्स को लाइन अप किया जाए कि एक के बाद एक ही उस पे अटैक कर सकें, एक के बाद एक ही उस पे उस पर्टिकुलर चीज को यूज कर सके, सारे एट ए टाइम उस चीज को यूज ना करें, ठीक है. तो मतलब हम मल्टीपल थ्रेड्स को लाइन अप कैसे कर सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है. लेकिन द पॉइंट नंबर 3 एंड द पॉइंट नंबर 4 can only be discussed once you reviewed the point number 1 and point number 2 theoretically as well as as well as in programming, ठीक है. So I request you all to please review each and everything for today. जो भी हमने किया इसको theoretically सारा review कीजिए, right? और programs जो मैंने आपको send किए हैं, ठीक है, वो आप review कीजिए, ठीक है. And I will also provide you a link for the multi-threading, a web link, a website link, जहाँ पे multi-threading का बहुत अच्छे से theory दे रखी है, ठीक है. तो मैं वो link आपसे share कर दूंगा, राइट. उस लिंक पे बहुत ध्यान से पढ़िए जो हमने आज आज किया, राइट. अगर आगे आगे भी पढ़ना चाहते हैं, अगले लेक्चर्स का भी पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है. तो वो सारा होमवर्क कीजिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मीटिंग का जो है वो हम करेंगे, राइट. सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Any discussion, any confusion, any question till now? Yes, any confusion, any question, any discussion till now?
Hello, are you there? Yes, 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 yes. Okay, Lukesh. So you quoted that we don't implement runnable interface when we use multiple threads. Yes, yes, I said this. Yes, yes. This is because Lukesh, you cannot specify public void run function for multiple times. ठीक है. यू कैन अनम्यूट योर माइक. आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो और आप मतलब कि इन वॉइस भी मुझसे टॉक कर सकते हो. ठीक है. डू यू वांट टू टॉक मी इन वॉइस? Yes, sir. Just I have a little confusion in that. ओके. Yes. ओके. सो लुकेश, बात ये है कि जब हम रनेबल इंटरफेस, एक मिनट मैं एक्लिप्स खोल लूँ. सो बच्चे, बात ये है कि जब हम रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं ना, राइट, तो उस केस में क्या होता है कि जिस क्लास पे हमने ये रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया होता है, उसी क्लास में हमें पब्लिक वॉइड रन फंक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है. ठीक है. और प्रॉब्लम ये है कि हम पब्लिक वॉइड रन फंक्शन जो है, ये मल्टीपल टाइम्स सिंगल स्पेस में इम्प्लीमेंट, ये जो फंक्शन है, ये हम एक से ज्यादा बार डिफाइन नहीं कर सकते हैं. आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. सो प्रॉब्लम क्या हुई कि हम सिर्फ एक ही बार पब्लिक वॉइड रन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं हमारी क्लास के अंदर. सो एक ही बार स्पेसिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि एक ही थ्रेड. ठीक है. तो अगर एक ही थ्रेड है तो वो एक ही काम करेगा. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो काम थे. एक काम तो हमने अपनी ही मेन प्रोसेस से करवा लिया, जि मतलब जिसने थ्रेड को ट्रिगर करवाया था. और जो दूसरा काम था, ठीक है, वो हमने रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करके, ठीक है, इसमें पब्लिक वॉइड रन में डाल दिया. ठीक है. ये दूसरा काम हो गया. अब अगर तीसरा काम भी है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको दोबारा से स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसको इसको मैं दोबारा कॉपी करके यहीं पे पेस्ट नहीं कर सकता, इट विल बी अ सिंटैक्स एरर. ठीक है. तो हम नहीं कर पाएंगे ना. हम एक से ज्यादा थ्रेड नहीं बना पाएंगे इम्प्ली ये रनेबल इंटरफेस को यूज करके. सो आर यू क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay, Lokesh, thank you. Okay, any other question from any other student? Any other Sir, confusion or query? I have a question. Yes, Karthike? Sir, you told us about your application that when you will press button, it will increase the number of thread and the processing of Ye- counting, incrementing numbers will also increase. So, yes. sir, please can you tell us a little bit about the behind logic if you are using for loop for declaring and defining threads and then implementing runnable method inside for loop. So it's Yeah. also implementing a number of threads also. Okay, Karthike. Right, right, right. Okay, so Karthike, I got your question. So I made this application in year 2016 when I was teaching in Chitkara University, and in order to show or demonstrate the application of multi-threading in a mobile specific scenario, I made an application in Android Studio, right? And I used implements runnable method. I'm sorry. I used anonymous class method, right? ये ऊपर जो मैंने सेकंड कोड आपको सेंड किया ना, दैट एनोनिमस क्लास मेथड. ठीक है. सो आई मेड यूज ऑफ एनोनिमस क्लास मेथड, राइट. ओके. सो उस एप्लीकेशन में क्या है कि जब वो एप्लीकेशन ओपन होती है, देन वहाँ पे दो बटन्स हैं. ठीक है. एक बटन है जो कि मेन प्रोसेस से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाता है. ठीक है ना. वो जो एप्लीकेशन है दैट इज इटसेल्फ अ मेन प्रोसेस, राइट. वो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, जैसे आप व्हाट्सएप स्टार्ट करते हो, ठीक है, जैसे ही आप पबजी स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, तो स्टार्ट होते सार एक मेन थ्रेड लॉन्च होता है. उसी मेन थ्रेड को हम मेन प्रोसेस कहते हैं या पेरेंट प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. तो मेरी भी एप्लीकेशन जब आप चलाओगे तो एक मेन थ्रेड चल पड़ेगा, एक मेन प्रोसेस जो है, पेरेंट प्रोसेस जो है, वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी रैम के. ठीक है. ओके. तो वहां पे दो बटन लगे हुए हैं. ठीक है. एक बटन जो है वो है मेरी पेरेंट प्रोसेस के लिए. ठीक है. और एक बटन जो है वो है
मेरे थ्रेड को लॉन्च करने के लिए मेरे थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं पहला बटन दबाता हूँ, मतलब जिससे जो कि मेरे थ्रेड को लॉन्च नहीं करता, ठीक है, जब मैं वो बटन दबाता हूँ तो जितनी बार मैं बटन दबाता हूँ उतनी बार मेरी मेरी जो मेन प्रोसेस है वो मुझसे मेरा 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 बटन प्रोसेस मेरा बटन प्रेस डिटेक्ट करती है और उसके बाद वो एक नंबर इंक्रीमेंट कर देती है, ठीक है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर मैं डिक्रीमेंट का बटन दबाता हूँ तो फिर वो डिक्रीमेंट करना शुरू कर देती है, 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जब मैं थ्रेड का बटन दबा देता हूँ तो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली चलने लगता है, ठीक है। वो 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, मुझे बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब थ्रेड चल चुका है, ठीक है। तो अब इंक्रीमेंट लगातार चल रहा है। एक थ्रेड मैंने थ्रेड का बटन सिर्फ एक बार दबाया तो इंक्रीमेंट चल गया, ठीक है, और वो इंक्रीमेंट सिर्फ एक ही थ्रेड कर रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने बैक टू बैक उसको 26 बार दबा दिया, ठीक है। तो 26 थ्रेड जनरेट हो गए हैं, ठीक है। तो वो सेम वेरिएबल जो एक थ्रेड इंक्रीमेंट कर रहा था, वो सेम वेरिएबल पे अब 26 थ्रेड्स जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। वो 26 थ्रेड उसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज सारे थ्रेड एसिंक्रोनसली आ रहे हैं, ठीक है ना। सारे थ्रेड अपनी मर्जी से अपने टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी थ्रेड को कोई देना नहीं है कि क्या ये पर्टिकुलर एबीसी वेरिएबल अभी कोई और थ्रेड इंक्रीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो मैं रुक जाऊं, ठीक है, और अगर नहीं कर रहा तो मैं चला जाऊं, ठीक है। तो अगर आपने 26 बार वो बटन दबा दिया तो इन 26 थ्रेड को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपने टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से आ रहे हैं और उस थ्रेड को और सॉरी उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, इसीलिए वो उसकी इंक्रीमेंटल स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैंने वो 26 थ्रेड सिंक्रोनाइज कर दिए होते, ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट की स्पीड जो है वो सेम रहती। सो एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. Very well. ये ठीक है ना। तो ये सिंक्रोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में करेंगे। वही मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप एक सिंगल वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हो, या आपका आपका अगर वेरिएबल शेयर्ड है मल्टीपल प्रोसेसेस या मल्टीपल थ्रेड्स में, तो कैसे आप एनेबल कर सकते हो इन सारी मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड या मल्टीपल थ्रेड्स को कि वो एक के बाद एक जाएं, ठीक है, उस पे एक के बाद एक जाके काम करें। उनको मालूम कैसे पड़े कि कोई मेरे से पहले कोई इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे काम कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी थ्रेडिंग सिंक्रोनाइजेशन या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। आपने शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी पढ़ा भी होगा, ठीक है। वो हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे जब हम मल्टी थ्रेडिंग की सिंक्रोनाइजेशन पे काम करेंगे, ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन? ओके, any other question or any other query regarding multi threading till now from your side? I'll be waiting for 1.5 minutes for your responses. अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलता है then I will answer that. अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है then I will assume that you are clear with each and every topic that I taught you today. Okay, students, so I need an answer from your side. जो हमारा 12 से लेके 1 बजे का सेशन है, उसमें उसमें हम क्या करेंगे? बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो ये पहले सेशन के लिए तो क्लियर था, ओके, दैट आई नीड टू टीच यू समथिंग। ये सेकंड जो सेशन है इसमें हम क्या करेंगे, क्या करते हैं एक्चुअल So में we जनरली? usually implement problems, metal ओके, problems or hacker rank problems. metal something, okay, I'm not actually familiar with metal and all
and this all kind of things. So इसका मतलब ये है कि हमें मीटिंग तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो उसमें मैं आपको कुछ टीच करूंगा या आप मुझे कुछ बताओगे? Sir, you'll just simply assign any problem statement, and then we'll solve it. ओके, तो आप उसको सॉल्व करके मुझे रिजल्ट भेजोगे उसका, है ना? Yes, sir. ओके, आई गॉट इट। ठीक है कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाईज। Okay, so I think this is a time to end the meeting, right? So I'll see you um, after 45 minutes because our session is going to start in 45 minutes, the second session, and this will be from 12 p.m. to 1 p.m. Right? So thank you so much and for being patient and for patiently attending my lecture. I hope I have cleared all of your doubts, and I hope that my session was enjoyable to you. And have a good day. Thank you so much. I'm going to terminate this meeting.